Students, today we will read a closer look administration and consolidation under the Khilji and Tughlaqs. In this section, we will read about the two dynasties and about their administration. The Khilji dynasty and Tughlaq dynasty. The consolidation of a kingdom as vast as the Delhi Sultanate needed reliable governors and administrators. Rather than appointing aristocrats and landed chieftains as governors, the early Delhi sultans, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for military service called Bandgan in Persian. They were carefully trained to man some of the most important political offices in the kingdom. Since they were totally dependent upon their master, the Sultan could trust and rely upon them. In this section, we have also read about the consolidation, administration, and consolidation of the Khilji and Tughlaq dynasties. The Khilji dynasty and the Tughlaq dynasty's kingdom, and when they ruled over Delhi, and they changed different reforms in the administration, and Delhi Sultanate needed reliable governors and administrators, and they were appointing the aristocrats and landed chieftains as governors. But when we talk about the early Delhi sultans, especially about the Iltutmish, and Iltutmish was the second ruler of the slave dynasty, and he was favored their special slaves, and he was purchased for the military service, and it was also called the Bandgan in the Persian language. And they were carefully trained to man some of the most important political offices in the kingdom, since they were totally dependent upon their master. Because the slaves were totally dependent upon their master, and the sultan could trust upon them. The sultans were advised slaves rather than sons, and you will be read this section. The Khalji and the Tughlaqs continued to use Bandgan and also raised people of humble birth, who were often their clients to high political positions. They were appointed as generals and governors. However, this also introduced an element of political instability. Khilji and Tughlaq dynasties continued to use the Bandgans, and though he was the slave, and he was the governors, and he was appointed by the ruler as a governor, and raised people of the humble birth, and who were often their clients, and to high political positions, and they got the high political positions in the Sultanate period, and they were appointed as generals and the governors. And however, this also introduced an element of the political instability. Slaves and clients were loyal to their masters and patrons, but not to their heirs. New sultan had their own servants. As a result, the accession of a new monarch often saw conflict between the old and the new nobility. The patronage of these humble people by the Delhi sultans also shocked many elites, and the authors of the Persian Tabari criticized the Delhi sultans for appointing the low and base born to high offices. Slaves and clients were loyal to their master, and the patrons, but not their heirs. जो गुलाम थे या जो क्लाइंट्स थे, वो अपने मास्टर के प्रति, यानी कि अपने जो उनका मालिक है उसके प्रति जो है वो काफ़ी लॉयल होते थे, और जो पैट्रॉन्स भी थे, ना कि वो अपने उत्तराधिकारियों के प्रति। जो नए सुल्तान हुए, उन्होंने अपने नौकरों को, अपने सर्वेंट्स को जो है इस प्रकार की पोजीशंस पर अपॉइंट किया था। उसका परिणाम यह हुआ कि एक नया मोनार्च जो है वो बना, और उनके बीच में काफ़ी जो है संघर्ष भी देखा गया,
उसमें ओल्ड यानी कि जो पुरानी नोबिलिटी थी और जो नए नोबिलिटी थी, यानी पुराने जो अमीर लोग थे और जो नए अमीर लोग थे, उनके बीच में संघर्ष भी देखा गया। और जो पैट्रोनेस थे वो दिल्ली सुल्तान से कि इस प्रकार की जो गतिविधियां थीं तो उससे वो काफ़ी शॉक्ड हुए, और उनमें जो एलिट वर्ग था उन्होंने फ़ारसी भाषा में जो ऑथर्स थे उन्होंने तवारीख में उनको क्रिटिसाइज किया है दिल्ली सुल्तान को, जब उन्होंने एक लो और बेस बॉर्न जो लोग थे उनको हायर ऑफिसेस के अंदर अपॉइंट किया था। तो इसमें ऑफिशियल्स ऑफ द सुल्तान मोहम्मद तुगलक के बारे में दिया गया है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज़ खुमार। सुल्तान जो मोहम्मद तुगलक था, तुगलक वंश का, उसने अजीज़ खुमार को क्या किया था, अपॉइंट किया था। ए वाइन डिस्टिलर फिरोज हजाम, ए बार्बर मनका तब्बाख, ए कुक एंड 2 गार्डनर्स लाधा एंड पीरा टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। तो इन सबको क्या है, एक हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दी गई थी। जबकि इसमें एक वाइन डिस्टिलर था, यानी कि वाइन बेचने वाला, वाइन बनाने वाला जो था, शराब बनाने वाला अजीज़ खुमार था। फिरोज हजाम एक बार्बर था। मनका तब्बाख एक कुक था, ठीक है, और 2 गार्डनर थे, माली, लोधा और पीरा। जियाउद्दीन बर्नी, ए मिड 14th century chronicler, reported their appointments as a sign of the Sultan's loss of political judgment and his incapacity to rule। जियाउद्दीन बर्नी जो मध्य 14वीं शताब्दी में हुए, उन्होंने उसके बारे में रिपोर्ट किया है कि ये जो अपॉइंटमेंट थे ये इस बात का सिंबल था, इस बात का सूचक था कि सुल्तान ने अपना जो पॉलिटिकल जजमेंट है, उसका जो राजनीतिक जो न्याय था या जजमेंट जो था वो कैसा था, इनकैपेबल था। कहीं ना कहीं वो अपना शासन करने में उसके पास कैपेसिटी नहीं थी, क्षमता नहीं थी, वो सही तरीके से निर्णय नहीं ले पा रहा था। Like the earlier sultans, the Khalji and Tughlaq monarchs appointed military commanders as governors of territories of varying sizes. These lands were called इक्ता and their holder was called इक्तादार और मुक्ति। जो प्रारंभिक सुल्तान हुए तो उनमें जो खिलजी और तुगलक जो मोनार्च था, उन्होंने अपने मिलिट्री कमांडर्स को गवर्नर बनाया था, है ना, जो टेरिटरीज थी उनका गवर्नर बनाया गया था। और उनको जो भूमियाँ दी गई उनको इक्ता कहा जाता था, और जो भूमियों को होल्ड करने वाले जो लोग थे उनको इक्तादार कहा जाता था या मुक्ति कहा जाता था। द ड्यूटी ऑफ द मुक्तीज वॉज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्तास। जो मुक्ति होते थे, जो इक्तादार होते थे, मुक्ति और इक्तादार एक ही बात होती है ना, तो वो मिलिट्री कैंपेन्स को, जो सैन्य अभियान होते थे, उनको लीड करते थे और वो कानून और व्यवस्था अपने इक्तास के अंदर मेंटेन रखते थे। इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज द मुक्तीज कलेक्टेड द रेवेन्यूज ऑफ देयर असाइनमेंट्स एज सैलरी। उसके बदले में वो जो सैन्य सेवाएं देते थे, तो मुक्ति क्या है, उसके बदले में क्या करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और वही रेवेन्यू उनको सैलरी के रूप में प्राप्त होता था। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दीज रेवेन्यूज, और उस जो रेवेन्यूज आता था उसको वो अपने सिपाहियों को पेड करते थे। कंट्रोल ओवर मुक्तीज वाज मोस्ट इफेक्टिव इन दर ऑफिस was not inheritable and if they were assigned iktas for a short period of time before being shifted। तो जो इक्ताज होते थे, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इक्तादार थे या मुक्ति जिनको कहा जाता था, वो अपने सिपाहियों को उस रेवेन्यू से उनकी सैलरीज को पेड करते थे, और मुक्तीस के ऊपर जहाँ उनका नियंत्रण स्थापित था वो अपने ऑफिस पर काफ़ी प्रभावी होते थे, ना कि वो इनहेरिटेबल होते थे, उनका वो वंशानुगत नहीं था। और उनको जो इक्तास को असाइन किया जाता था वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता था, जब उसको बदला जाता था, शिफ्ट किया जाता था। दीज हार्श कंडीशन ऑफ द सर्विस वर रिगोरसली imposed during the reign of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. Accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected by the muktis. Care was taken that the mukti collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers। अगर हम अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल की बात करते हैं तो उनके शासनकाल के दौरान जो अकाउंटेंट्स थे
उनको स्टेट का जो है चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुफ्तीज। जो अकाउंटेंट होते थे उनको नियुक्त किया जाता था, तो उनके अकाउंट को चेक करने के लिए और जो अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाता था मुफ्तीज के द्वारा, ठीक है, उसको वो क्या करते थे, चेक करते थे। कौन? अकाउंटेंट्स। केयर वॉज टेकन दैट द मुफ्ती कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस। और जो मुफ्ती होता था उसकी ड्यूटी क्या थी, वो केवल टैक्सेस को कलेक्ट करता था जो उसके स्टेट में प्रेस्क्राइब्ड था पहले से, और उसके लिए उसको जो है नंबर ऑफ सोल्जर्स की नीड होती थी, आवश्यकता होती थी, रिक्वायरमेंट होती थी, ठीक है। एज द दिल्ली सुल्तान्स ब्रॉट द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़ अंडर देयर कंट्रोल। जैसे ही दिल्ली के सुल्तानों ने अपने हिंटरलैंड्स को पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था, दे फोर्स द लैंडेड चीफ्टेंस, तो उन्होंने फोर्सफुली जो है वहाँ पे क्या किया, लैंडेड चीफ्टेंस जो है थे, द सामंता एरिस्टोक्रेट्स एंड द रिच लैंडलॉर्ड्स टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। तो इन सभी ने जो है सुल्तान की अथॉरिटी को स्वीकार किया था, चाहे वो अरिस्टोक्रेट, सामंता अरिस्टोक्रेट रहे, चाहे रिच लैंडलॉर्ड्स रहे, लैंडेड चीफ्टेंस रहे। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान अगर हम देखें तो जो असेसमेंट होता था कलेक्शन का लैंड रेवेन्यू का, तो वो उसके नियंत्रण में था। द राइट ऑफ द लोकल chieftains to levy taxes were cancelled and they were also forced to pay taxes। अलाउद्दीन के शासनकाल में जो स्थानीय जमींदार होते थे, जो चीफ्टेंस होते थे, उनके ऊपर भी, क्योंकि उनको टैक्स लेने का अधिकार होता था फार्मर से, तो उनसे वो टैक्स कैंसिल कर दिया गया और फोर्सफुली उनसे भी टैक्स लिया जाना शुरू किया गया। सुल्तान एडमिनिस्ट्रेटर्स मेजर द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स। तो सुल्तान के जो प्रशासनिक जो प्रक्रियाएं थीं उनको जो है मेज़र किया गया था और भूमि के द्वारा, और केप्ट केयरफुल अकाउंट्स, और उनके केयरफुली जो है अकाउंट्स जो है वो रखे गए। सम ऑफ द ओल्ड चीफ्टेंस एंड लैंडलॉर्ड्स सर्व द सल्तनत एज रेवेन्यू कलेक्टर्स एंड एसेसर्स। कुछ जो पुराने जो चीफ्टेंस थे या जो लैंडलॉर्ड्स थे वो सल्तनत की सेवा किया करते थे, रेवेन्यू कलेक्टर्स थे और उनके एसेसर्स। दीज वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। 3 प्रकार के टैक्स होते थे। ऑन कल्टीवेशन कॉल्ड खरास, जो कल्टीवेशन पे लगाया जाता था उसको खराज कहा जाता था। अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीसेंट्स प्रोड्यूस, यानी कि जो किसान हैं वो अपनी वो जितना भी प्रोडक्शन करता था उसका 50% अमाउंट जो है वो खराज के रूप में पे करता था। दूसरा जो था वो ऑन कैटल, यानी कि पशुओं के ऊपर भी टैक्स था, एंड ऑन हाउसेज, और घरों के ऊपर भी टैक्स था। It is important to remember that large part of the subcontinent remained outside the control of the Delhi Sultans। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है याद रखना कि अधिकतर जो हिस्सा था सबकॉन्टिनेंट का जो दिल्ली के कंट्रोल या दिल्ली के नियंत्रण से अभी भी क्या था, बचा हुआ था दिल्ली सुल्तानों से। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंसेस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली एंड सून आफ्टर एनेक्सिंग साउथर्न इंडिया द एंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट। और ये काफ़ी जो है मुश्किल था कि दूरस्थ के जो प्रोविंसेस थे, चाहे वो बंगाल था दिल्ली से, और जल्द ही उनको क्या किया गया, एनेक्स किया गया था, उनको विलय किया गया साउथर्न इंडिया को भी, और एंटायर रीजन जो स्वतंत्र बना, है ना, जो पूरा जो क्षेत्र था वो क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया था। इवन इन द गंगेटिक प्लेन देयर वर फॉरेस्टेड एरियाज। इसके अतिरिक्त अगर हम कहें जो गंगा का मैदान था जहाँ पर जंगली क्षेत्र थे, फॉरेस्टेड एरियाज थे, दैट सल्तनत फोर्सेस कोड नॉट पेनिट्रेट एंड लोकल चिफ्टेंस एस्टेब्लिश देयर रूल इन दीज रीजन्स। तो जो सल्तनत थी उसने उन क्षेत्रों को जो है ना उस पर जो है उनका कब्जा नहीं हो सका एक तरीके से, और जो लोकल चिफ्टेंस थे उन्होंने वहाँ पर उन क्षेत्रों में अपनी सत्ता जो है कब्जा ली। समटाइम्स रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दीज एरियाज बट ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। लेकिन एक छोटे समय के लिए ये जो क्षेत्र थे उन सभी क्षेत्रों पर अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक ने अपना नियंत्रण स्थापित किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है आपका द मंगोल्स अंडर चंगेज़ खां। मैंने कल भी आपको बताया था कि जो मंगोल है वो चंगेज़ खां के नेतृत्व में उन्होंने आक्रमण किया था। 1219 का दे रखा है ये, है ना। तो मंगोल जो थे वो चंगेज़ खां ने जब भारत पर आक्रमण किया
वो नॉर्थ ईस्ट ईरान से आया था 1219 में, एंड दिल्ली सल्तनत फेस्ड देयर onslaught soon after. Mongol attacks on the Delhi Sultanate increased during the reign of Alauddin Khilji and in the early years of the Muhammad Tughlaq rule. This forced the two rulers to mobilize a large standing army in Delhi, which posed a huge administrative challenge. Let us see how the two sultans dealt with this. जैसे मैंने आपको बताया कि मंगोलों के आक्रमण का उस समय काफ़ी खतरा बना रहता था। 1219 में जब आक्रमण हुआ उस समय इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। 1221 में फिर चंगेज़ खान ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तो मंगोलों के आक्रमण का एक जो खतरा बना रहता था वो पूरे अगर हम देखें 13वीं शताब्दी के दौरान बना रहा। लेकिन 14वीं शताब्दी में अगर आप देखें जब अलाउद्दीन खिलजी पावर में आया, उसके बाद मोहम्मद तुगलक भी आए, तो उन दोनों ने इस प्रकार की गतिविधियों पर एक नियंत्रण स्थापित किया। और उसको नियंत्रण स्थापित जो करने का सबसे बड़ा जो कारण था, उनके पास एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी थी, है ना। एक जो फ़ौज उन्होंने बनाई, एक बड़ी फ़ौज का उन्होंने निर्माण किया, और ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ा एक प्रशासनिक चुनौती भी थी, है ना। और उन्होंने इसके साथ डील भी किया, अच्छा, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बारे में दिया गया है यहाँ पे डिटेल्ड में, तो आप इसको एक बार स्टडी कर लेंगे, क्योंकि दिल्ली वॉज अटैक ट्वाइस इन 1299, 1300 एंड 1302, 1303 एज ए डिफेंसिव मेजर। अलाउद्दीन खिलजी रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। ओके, तो ये आप पढ़ेंगे, इसको पूरा दे रखा है इसके बारे में। In this list of the Muhammad Tughlaq failures, we sometimes forget that for the first time in the history of the Sultanate, a Delhi Sultan planned a campaign to capture Mongol territory. Unlike Alauddin's defensive measures, Muhammad Tughlaq measures were conceived as a part of military offensive against the Mongols. जब मोहम्मद तुगलक के फेलियर्स के बारे में हम देखते हैं इस लिस्ट में, तो हम ये भूल जाते हैं कि पहली बार इतिहास में, अगर सल्तनत के इतिहास में देखें, तो जो दिल्ली सुल्तान थे उन्होंने योजना बनाई कि मंगोल राज्यों पर कब्जा किया जाए, जबकि अलाउद्दीन ने एक डिफेंसिव मेजर लिया, उसने एक रक्षात्मक जो है रवैया अपनाया। मोहम्मद तुगलक ने जो है उसका जो एक रवैया रहा मिलिट्री ऑफेंसिव का, है ना, मिलिट्री ऑफेंसिव जो है उसका एक रवैया रहा था अगेंस्ट द मंगोल्स, है ना, मंगोलों के खिलाफ। द सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरी, यानी कि सल्तनत की स्थिति 15वीं और 16वीं शताब्दी में क्या रही। तो टेबल 1 को दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। टेबल 1 जो है उसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको सारी स्थिति क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो उसको एक बार स्टडी कर लेंगे टेबल 1 को, ठीक है ना, तो आपको पता चल जाएगा। अगेन यू विल नोटिस दैट after the Tughlaq, the Sayyid and Lodi dynasties ruled from Delhi and Agra until 1526. By then, Jaunpur, Bengal, Malwa, Gujarat, Rajasthan, and the entire South India had independent rulers who established flourishing states and prosperous capitals. This was also the period which saw the emergence of the new ruling groups like the Afghans and the Rajputs. आपने नोटिस किया होगा कि तुगलकों के बाद सैयद आए, सैयदों के बाद कौन आए, लोधी आए, है ना। लोधियों ने जो शासन किया वो दिल्ली से आगरा तक किया था 1526 तक, और उसके बाद अगर देखें जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान ये और एंटायर साउथ इंडिया, ये क्या हो गए, ये इंडिपेंडेंट रूलर्स के कंट्रोल में आ गए थे, है ना। और उन्होंने अपने स्टेट्स को क्या किया, फ्लोरिश भी किया और एक प्रॉस्पिरियस कैपिटल्स बनाए। और ये जो पीरियड रहा उसमें ये देखा गया कि नए रूलिंग ग्रुप्स जो हैं वो एमर्ज हुए, जैसे अफगान्स और राजपूतों का। सम ऑफ द स्टेट्स एस्टेब्लिश्ड इन दिस पीरियड वर स्मॉल बट पावरफुल एंड एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्ट्रेड। इनमें से कुछ ऐसे राज्य थे इस पीरियड के दौरान, उन्होंने छोटे और शक्तिशाली जो है राज्य स्थापित किए, और वहाँ जो प्रशासनिक व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी। इनमें शेरशाह सूरी थे जो 1540 से 1545 तक, है ना, स्टार्टेड हिज कैरियर एज द मैनेजर ऑफ अ स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल इन बिहार एंड इवेंचुअली चैलेंज्ड एंड डिफीटेड द मुगल एम्परर हुमायूं 1530, 1540, 1555, 1556. शेरशाह कैप्चर्ड दिल्ली एंड एस्टेब्लिश्ड हिज ओन डायनेस्टी। शेरशाह सूरी जो थे उन्होंने अपने कैरियर की जो शुरुआत है वो एक मैनेजर के रूप में की। एक छोटा सा जो राज्य था बिहार में, है ना, उनके अंकल जो थे, उनके जो चाचा थे, है ना,
उनके नेतृत्व में उन्होंने जो है अपना कैरियर की शुरुआत की थी और उन्होंने एक बहुत बड़ी चुनौती स्वीकार की और मुग़ल बादशाह हुमायूं को पराजित किया था। शेर शाह कैप्चर दिल्ली, शेर शाह ने दिल्ली पर कब्जा किया और अपना स्वयं है ना एक वंश की स्थापना भी की। ऑल्दो द सूर डायनेस्टी रूल्ड फॉर ओनली 15 ईयर्स, यद्यपि जो सूर डायनेस्टी था, जो सूर वंश था, उसने करीब 15 वर्षों तक शासन किया, 1540 से लेकर 1555 तक। इट इंट्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी एंड मेड देम मोर एफिशिएंट। और उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो चेंजेस किए, उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स थे जो अलाउद्दीन खिलजी से उधार लिया, यानी कि उसके प्रशासनिक व्यवस्था से उन्होंने सीखा और उस अपने प्रशासन को काफ़ी एफिशिएंट बनाया। शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्परर अकबर। शेरशाह का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल था उसको बाद में महान सम्राट अकबर ने भी उसको क्या किया, फॉलो किया। 1556 से 1605 तक अकबर ने भारत पर शासन किया था। वैन ही कंसोलिडेटेड द मुग़ल एम्पायर, और जिसने मुग़ल साम्राज्य को संगठित किया। तो कहने का अर्थ यह है कि शेरशाह सूरी का जो शासनकाल रहा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। करीब 15 वर्षों तक उसने शासन किया और उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म्स थे उनको बाद में मुग़ल एम्परर अकबर ने भी क्या किया था, फॉलो किया था। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में जो पढ़ेंगे इसमें आपका लेट्स रिकॉल पार्ट है और कुछ लेट्स अंडरस्टैंड लेट डिस्कस क्वेश्चंस हैं, इनको हम नेक्स्ट सेक्शन में कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे आपका रीडिंग सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर में हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा है कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से सुल्तान हुए और उन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया और उन्होंने क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए। आप ये अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक दोनों के बारे में एक बार इसमें स्टडी कर लेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो इसको आपको कंप्लीट करना है।